Hello everyone, I am Anuja and I welcome you all to Mankavit Law Academy. So in this video, I will discuss a very frequently used terminologies of Indian Contract Act, which is your valid contract, voidable contract and void agreement. ये terms Indian Contract जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी बार यूज़ होता है, तो आई थिंक हम सबको इसका मतलब पता होना चाहिए. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है विथ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए. बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल you that our course for the LLM entrances 2021, that is your CLAT LLM exam, your IELTS LLM exam, DU exam, the ILI exam and any other entrances exam has started. If you want to register for the course, then register as soon as possible. For all the information, you can visit our website. You can find the link in the description box, and if you have any queries or you need any clarification on anything, you can call me on the number which is again provided in the description box. तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो in this example, here this person A, who is of 35 years of age, and this person B who is of 30 years of age. ये एक agreement करते हैं, A B को अपना कार देगा और in return, this is the consideration. In consideration, B will give A rupees 5 lakh. Now this is a valid कॉन्ट्रैक्ट. एक अग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की. ओके, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए ने यहाँ अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोला और बी ने भी अपनी मर्जी से इस ट्रांजैक्शन के लिए हामी भरी. सो हियर देयर इज फ्री कंसेंट ऑफ द parties. Next is your competent to contract. Competent to contract मतलब you should be a person who is of a sound mind. Unsound mind के person contract नहीं कर सकते हैं. आप you have to be a major, you have to be more than 18 years, and then you should not be disqualified from law. That is the meaning of your competent to contract. तो यहाँ पे A is 35 years and B is also 30 years, so they are competent to contract. Now इनका जो object है contract का, ये उसको कार दे रहा है and he is giving rupees 5 lakh. So here the object is also lawful, and the consideration that B is giving to A in return of the car, that is rupees 5 lakh, is also a lawful consideration. And this agreement is something which is not expressly declared to be void by the Indian Contract Act. यहाँ पे expressly declared to be void, this is a part of void agreement. यहाँ section 23, 26 to 30, 56 para 1 इन सिचुएशंस में जो आप अग्रीमेंट करते हो उनको void agreement बोला जाता है. So here in this case it will be a valid contract. Okay, because section 10 की भी सारी requirements यहाँ पे fulfill हो रही है. So एक agreement को contract बनने के लिए क्या चाहिए होता है? You have to have the intention, and उसके अलावा ये 5 elements है जो कि fulfill होनी चाहिए. तो एक agreement आपका बन जाता है contract. This is the meaning of your valid contract, which is I think very simple. Now we come to void agreement. Now I told you in the last lecture, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आपको ये बताया था that this term void contract is not a correct term and you should not use this term. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. मैंने आपको वहाँ पे रीज़न भी बताया है कि void contract क्यों सही टर्म नहीं है. And you should always use the term which is your void agreement. Now void का definition is provided under section 2G, which says that something which is not enforceable by law is void. चलिए कुछ examples देखते हैं. For example, A है, B है. A ने यहाँ B को बोला कि मैं तुमको अपना कार दूंगा और in return B will kill C. So this will be a void agreement because यहाँ पे जो killing C है is अनलॉफुल. आप ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो. सो दिस इज नलिटी. ये अग्रीमेंट को लॉ कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगा. सो दिस इज योर वॉइड अग्रीमेंट बिकॉज आपने जो कंसिडरेशन दिया है दैट इज टू किल सी, दैट इज अनलॉफुल एंड इट विल बी हिट बाई सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी को बोलता है कि ए विल गिव बी द कार एंड इन रिटर्न बी विल गिव हिम ड्रग्स। नाउ यहाँ पे भी ड्रग्स का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट। सो यहाँ पे ए बी को कार दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन कंसिडरेशन बी इज गिविंग ए ड्रग्स विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो अगेन दिस विल बी अ void agreement. Okay, so this is something what is void. Now we come to the third illustration where A says to B that A will give B rupees 10 lakh और in return A B को बोलता है that you will not get married through your life टाइम। सो अगर आप सेक्शन 26 देखोगे उसमें क्लियरली लिखा है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज void. So again this will be hit by section 26 and it will be a void agreement. These situations are something which cannot be enforced by law. ओके तो इसे हम कहते हैं void agreement. void agreement का मैंने आपको बताया कुछ सेक्शन लाइक सेक्शन 23, 26 to 30, सेक्शन 56 पैरा 1 दे टॉक्स अबाउट सिचुएशंस वेयर द अग्रीमेंट इज void. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का और void agreement का। इसके अलावा एक और चीज़ है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अपना कार यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और बी ए को 5 लाख रुपए नहीं दे रहा है, तो इस सिचुएशन में बी कोर्ट में जा सकता है एंड बी कैन सू in this situation A can go to the court and A can sue B because A has given the car पर B ने 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। सो हियर A हैज़ द राइट टू सू B. सिमिलरली अगर B ने यहाँ पे 5 लाख रुपए दे दिया होता A को और उसके बाद भी A उसको कार नहीं दे रहा है, नहीं डिलीवर कर रहा है, तो इन दिस सिचुएशन B के पास ऑप्शन होता कि वो कोर्ट में जाके इस ट्रांजैक्शन को इन्फोर्स कराए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी के पास राइट होती है राइट टू सू। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग वेयर बोथ द पार्टीज कैन सू। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी सू कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ, राइट। नाउ इफ वी कम टू वॉइड अग्रीमेंट, इस केस में मानते हैं कि ए ने बी को अपना कार दे दिया और बी ने क्या बोला था, बी ने इन रिटर्न बोला था आई विल किल सी। अब ए ने अपना कार दे दिया बट बी बोलता है आई विल नॉट किल सी। सो इस केस में ए के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट में जाके अपना अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड अग्रीमेंट इज समथिंग विच इज नॉट एनफोर्स्ड बाई लॉ। तो अगर आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो जो कि आपका अनलॉफुल है या फिर जो आपका वॉइड अग्रीमेंट में आता है, तो आपके पास राइट नहीं होता है सू करने का दूसरी पार्टी को। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉइड अग्रीमेंट इज समथिंग वेयर नन ऑफ द पार्टी कैन सू। नाउ लेट्स कम टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम देखते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, A is a person who has a land and B is a constructor. B को A का लैंड चाहिए कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहता है उसके लैंड में, तो इसलिए B को A का लैंड चाहिए। B A को बोलता है that I want your land and I will pay you the amount. But A बोलता है I don't want to sell my land now. But B wants his land because he wants to do some construction on his land. So what B does is that he kidnaps C, who is A's son. He kidnaps C and B A को बोलता है I have kidnapped your son C. If you will not give me your land, then I will kill C. इस डर से A B को अपना लैंड दे देता है। ओके, सो एंड इन रिटर्न B gives A rupees 10 lakh. What is the value of the land? But क्या यहाँ पे A की कंसेंट फ्री थी? नहीं, ए की कंसेंट फ्री नहीं थी। ए ने उसको अपना लैंड इसलिए दिया क्योंकि उसने उसके सन को किडनैप कर लिया था। तो ये आपका होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका फ्री कंसेंट नहीं है और ज़बरदस्ती कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे उसने उसको 10 लाख रुपए दे दिए बट क्या उसकी कंसेंट फ्री थी? नहीं थी। सो दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
ए है हु इज़ अ ओल्ड मैन एंड ही इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत खराब है कुछ दिनों से, एंड बी जो कि फॉर एग्जाम्पल उसका टीनेंट है, बी ए का टीनेंट है। नाउ बी इस कंडीशन का, इसके कंडीशन का फ़ायदा उठाता है और इससे उसकी प्रॉपर्टी की पेपर साइन करा देता है। ए जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ साइनिंग, ही गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू बी। नाउ इन दिस केस क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट है? यहाँ पे भी फ्री कंसेंट नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट ही वॉज साइनिंग। तो यहाँ पे भी फ्री कंसेंट नहीं है और बी ने इस कंडीशन का, ए की कंडीशन का, ओल्ड मैन की कंडीशन का फ़ायदा उठाकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लिया। सो अगेन दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ this is what is your coercion which is provided under section 15, and this is an example of undue influence that is provided under section 16. okay, एंड सेक्शन 17 में फ्रॉड है, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंट करके भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ होती है दैट इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली वन पार्टी कैन सू। इस सिचुएशन में सिर्फ ए बी को सू कर सकता है, इस केस में सिर्फ ए बी को सू कर सकता है। यहाँ पे बी ए को सू नहीं कर सकता, यहाँ पे बी ए को सू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इसने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी और इसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर ओनली वन पार्टी कैन सू एंड द अदर पार्टी कैन नॉट सू। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए इस ट्रांजैक्शन को पूरा करना चाहता है तो वो ए की मर्ज़ी है, अगर ए पूरा नहीं करना चाहता है तो वो बी को सू कर सकता है। सो अगर ए ने उसको सू नहीं किया बी को तो इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर उसने उसको सू कर दिया सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा एंड। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई होप दिस इज clear. So a valid contract is something where both the parties can sue. A voidable contract is something where one of the party can sue, and a void agreement is something where none of the parties has the right to sue. So I hope that the meaning of valid, voidable and void agreement is clear to you all. If you have any other doubts you can ask me under the comment section. As already told that our courses has started for the LLM entrances 2021. If you want to enroll to the course you can contact me or visit our website. Also please do subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you everyone for watching.